ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ نیپال میں آئے فلڈ اور باڑھ سے ہونے والی تباہی ابھی رکی نہیں ہے، بلکہ تباہی اور بربادی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے جو کچھ نئی جھیلیں بن گئی ہے، اس کی وجہ سے دوبارہ فلڈ آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے، اور ابھی جو تباہی ہوئی ہے، جو بربادی ہوئی ہے، اس سے 5 گنا زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس سے 5 گنا زیادہ تباہی ہو سکتی ہے۔ نیپال کی سرکار نے باضابطہ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پورا کا پورا علاقہ لوگوں کو خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ ادھر چین کی حکومت نے بھی ریلیف ورک کو روک دیا ہے، ریسکیو آپریشن کو بند کر دیا ہے، کیونکہ بیریئر جھیل کی وجہ سے یہ تباہی 5 گنا بڑھ سکتی ہے۔ ادھر پوری دنیا چین کی سرکار پر تنقید کر رہی ہے۔ عالمی میڈیا میں چین سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ چین نے ارلی وارننگ سسٹم لگا رکھا ہے، چین کے پاس دوسری ٹیکنالوجی ہے، اور چین کے پاس انفارمیشن تھی، جانکاری تھی کہ انوائرمنٹ بدل رہا ہے، فلڈ آ سکتا ہے، تباہی آ سکتی ہے۔ اس کے باوجود چین نے نیپال کے ساتھ اس انفارمیشن کو، ڈیٹا کو شیئر نہیں کیا، اور اسی وجہ سے اتنا بڑا فلڈ آیا، سیلاب آیا، اور نیپال پہلے سے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے چین کے اوپر۔ دوسری طرف چین اپنی بے بسی کا، عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے، خبریں سامنے آ رہی ہے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ نیپال میں تباہی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، اور ابھی بھی کئی ایسا علاقہ ہے جو مکمل طور پر ندی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہزاروں وزیٹرز، ہزاروں سیاح ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا بھر کے سائنسداں اور جو ریسرچ ادارے ہیں وہ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ نیپال اور تبت کی سرحد پر اتنا بڑا فلڈ اچانک کیسے آ گیا۔ الگ الگ وجہ لوگوں نے بتائی ہے، اور اب چین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چین نے اپنا ارلی وارننگ سسٹم لگا رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں اگر کوئی حرکت ہوگی، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکے گا، گلیشیئر ٹوٹے گا، یا کوئی بادل پھٹے گا، یا کچھ اور ایسا ہوگا، تو ارلی وارننگ سسٹم پورے کو ریڈ کرتا ہے، وہ انفارمیشن دیتا ہے، اور ایسا ہونے سے 20 منٹ پہلے ہی جانکاری مل جاتی ہے۔ اور جب چین کی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہے، چین اتنا پاورفل اور طاقتور دیش ہے، اس کی ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے، اور اس کے ارلی وارننگ سسٹم نے سب کچھ ریڈ کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اس کے باوجود چین نے جان بوجھ کر نیپال کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس طرح کی خبر شائع کی ہے واشنگٹن پوسٹ نے، BBC نے، فاکس نیوز نے، دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے، اور ان سب کا کہنا ہے کہ اس سال سے پہلے 7 مرتبہ چین کے ارلی وارننگ سسٹم نے ڈیٹا شیئر کیا تھا، جانکاری شیئر کی تھی کہ ان دنوں بھی فلڈ آ سکتا تھا، پہاڑوں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تھی، گلیشیئر کے ٹکڑے ٹوٹے تھے، اور چین کے ارلی وارننگ سسٹم کو پتہ چلا اور اس نے انفارمیشن شیئر کر دیا۔ اس کے بعد آنے والی آفت کو، تباہی کو روکا گیا، لیکن اس مرتبہ جان بوجھ کر چین نے یہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا، ایسا چین پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ادھر چین کی حکومت اور چین کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں تھا، ہمارے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں تھی، پورا کا پورا سسٹم فیل ہو گیا، چوپٹ ہو گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تبت کا جو علاقہ ہے، جس کو کیرونگ کاؤنٹی کہا جاتا ہے، وہاں 8 بجے بدھ کے دن صبح میں گلیشیئر کا ٹکڑا ٹوٹا، اور اس کے بعد پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ 45 منٹ بعد پانی بھوٹے کوشی ندی میں آ گیا، جو نیپال میں ہے، اور اس کے بعد پورا کا پورا نیپال پانی میں ڈوبنے لگا۔ 45 منٹ کا ٹائم تھا، وقفہ تھا، نیپال کو انفارمیشن مل سکتی تھی، لیکن چین کی سرکار ان تمام الزامات کے جواب میں کہہ رہی ہے ہمارے پاس پہلے سے کوئی جانکاری نہیں، ہمارے ارلی وارننگ سسٹم نے بھی کام نہیں کیا، ہمارا جتنا رڈار لگا ہوا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب چین اور نیپال کی سرکار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ سرحدوں پر دونوں دیش کی جو فوجیں تعینات تھی، ان فوجوں سے بھی ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہاں جتنے رڈار لگے ہوئے تھے، سگنل لگے ہوئے تھے، جتنے سینسر لگے ہوئے تھے، ان سب نے کام کرنا بند کر دیا ہے، وہ سب پانی میں بہہ گئے ہیں۔ وہاں پر تعینات آرمی اور فوج کس سچویشن میں ہے یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا ہے۔ اور اب جو سب سے بڑی تباہی آنے والی ہے وہ یہ کہ ملبے کی وجہ سے،
पानी की वजह से एक नई झील बन गई है तिब्बत और नेपाल की सरहद पर, और उसको बैरियर झील कहा जा रहा है। बैरियर झील का मतलब ही होता है कि मलबे से, पानी से एक नई झील बन जाए और उसमें पानी इकट्ठा हो जाए। अब मलबा की वजह से, पानी की वजह से एक नई झील बनी है, बैरियर झील इसको कहा जा रहा है। 25 लाख टन मीटर से ज़्यादा पानी इसमें इकट्ठा हो गया है, और अगर इसकी बांध टूट जाती है, मलबा हट जाता है, तो अब तक जो तबाही आई है, जो बर्बादी हुई है फ्लड की वजह से, उससे 5 गुना ज़्यादा तबाही होगी, बर्बादी होगी। और इसी ख़तरा को देखते हुए चीन ने इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया है। नेपाल भी इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर रहा है क्योंकि ख़तरा बहुत बड़ा है। और अगर ये बैरियर झील टूट जाती है, इसका बांध ख़त्म हो जाता है, तो फिर नेपाल का जो बचा खोचा एरिया है, रसुआ ज़िला का, नोवाकोट का, ये सब पूरी तरह डूब जाएगा। अभी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, जो परसों की वीडियो है, कुछ कल की वीडियो है, और ये नई वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि वैली में जो लोग रह रहे हैं, और वैली में छोटी सी नदी बहती है, उसमें पानी का बहाव इतना तेज़ है कि घरों के ऊपर से पानी बह रहा है और पूरा का पूरा घर पानी में डूबता जा रहा है। जो लोग पहाड़ों में होते हैं या जो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पहाड़ के ऊपर लोग कम घर बना कर रहते हैं, वैली में रहते हैं। आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, भारत के इन सूबों में पहाड़ है, तो वहाँ देखेंगे कि ऊंचा ऊंचा पहाड़ों का सिलसिला होता है, और दो पहाड़ के बीच की जो जगह होती है उसी को वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। तो उसमें लोग बसते हैं, और उसी वैली के बीच में छोटी सी नदी भी उमूमन बहती है। उस नदी की गहराई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उस नदी का पानी बहुत साफ़ शफ़ाफ़ होता है, उसको कई मरतबा चश्मा कहा जाता है, और पहाड़ों से ही वो पानी आता है। वहाँ के लोग उसी पानी को पीते हैं, वहाँ के लोग उसी पानी से अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। उस पानी को, उस नदी को लोग गंदा भी नहीं करते। और इसी सीन को, इसी मंजरनामा को देखने के लिए विज़िटर्स जाते हैं, सयाह जाते हैं कि पहाड़ों के बीच में किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह वहाँ चश्मा बहता है, नदी बहती है, कितना साफ़ सुथरा पानी होता है, और उस नदी में चट्टान रखे होते हैं, पत्थर रखे होते हैं। अब ऐसा ही सीन नेपाल के इस इलाके में भी था। नेपाल और तिब्बत का जो इलाका है, हिमालय का पूरा सिलसिला है, दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है, और दुनिया भर के विज़िटर्स, दुनिया भर के ज़ायरीन यहाँ घूमने आते हैं, कुदरत की इस खूबसूरती को देखने आते हैं। और वहाँ वैली में घर बना हुआ है। अब आप एक वीडियो देखिए कि वैली में घर बना हुआ है, बीच से एक छोटी सी नदी बहती है, और पानी का बहाव ऊपर से आ रहा है, यानी घर के ऊपर से पानी आ रहा है। पहाड़ों के बीच की जो जगह है वो पूरी जगह वैली नहीं बल्कि दरिया बन चुकी है। उसके बाद जो खुश्की का इलाका है, जो मार्केट का इलाका है, जहाँ लोगों के घर बने हुए हैं, वो सब का सब पानी में डूब रहा है, वो सब झील और नदी में तब्दील हो गया है। एक और वीडियो देखी जा रही है, एक घर है और उस घर के चारों तरफ पानी आ गया है, और लोग बचने के लिए घर की छत पर, बालकोनी पर आ गए हैं, रूफटॉप पर आ गए हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस घर में मौजूद लोग बच पाए या नहीं बच पाए। किसी ने अपने कैमरे से कैद किया और वो शख्स भी बचा या नहीं बचा कहना मुश्किल है, लेकिन ये मंज़र कितना डरावना है कि घर के चारों तरफ पानी है, और पानी में लहर है, तुग़यानी है, सरकशी है, और घर की छत पर लोग मदद की आस लगाए बैठे हैं। एक दिन पहले तो नेपाल की रेस्क्यू टीम ने और ऑपरेशन करके हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को घरों की छतों से बचाया था। एक और वीडियो सामने आए हैं, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा डरावनी है, खौफनाक वीडियो है। पहाड़ों से पानी बह रहा है, पानी में तुग़यानी है, लहर है, और वहाँ पर बहुत सारे विज़िटर्स खड़े हैं, वो अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो शूट कर रहे हैं। इन तमाम विज़िटर्स और ज़ायरीन को ये लगता है कि पानी का रुख दूसरी तरफ है, तो जो पानी का रूट बना हुआ है उधर ये पानी जाएगा, इधर नहीं आएगा। ये चट्टानों पर खड़े हैं, ऊंची जगह पर है, इनको कुछ नुकसान नहीं होगा। और यही समझकर ये तमाम विज़िटर्स और सयाह ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर पहाड़ों से गिरने वाले पानी की वीडियो बना रहे थे, और अचानक पानी ने अपना रुख तब्दील कर दिया, और ये सब पानी में डूब जाते हैं। ये जितने विज़िटर्स यहाँ पर खड़े हैं, इनको मौका भी नहीं मिल पाता अपने आप को बचाने का, अपने आप को संभालने का। इनका फ़ोन डूब गया, ये खुद डूब गए, और इनमें से कोई भी नहीं बच पाया। दूर से कोई इन तमाम लोगों को कैद कर रहा था अपने कैमरे में, और उसकी वीडियो वायरल हो रही है।
अरे तो चंद वीडियोस है, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे थे और उनको लग रहा था कि हम महफूज जगह पर हैं, लेकिन वो भी फ्लड की जद में आ गए, नहीं बच सके। ये 5% भी नहीं है जो आप वीडियोस के ज़रिए देख रहे हैं, विजुअल्स में देख रहे हैं। जो जर्नलिस्ट वहाँ ग्राउंड पर जा रहे हैं वो एक्चुअल ग्राउंड पर अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर दूर खड़े होकर लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ख़बरें बता रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल जगह है वहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है, फ़ौज भी नहीं पहुँच पाई है। चीन जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, उसने रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया, वहाँ पर मौजूद फ़ौजों से उसके ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। तो आप समझिए ये कितनी बड़ी तबाही है, ये कितनी बड़ी बर्बादी है। और इसीलिए कुछ लोग मान रहे हैं कि ये महज एक फ्लड नहीं है, सैलाब नहीं है, बल्कि कुदरती आफत है। और जब कोई कुदरती आफत आती है, जब कुदरत फ़ैसला कर लेती है कि दुनिया के लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है, तो खुदा ने अपने वजूद का एहसास दिला दिया है। और खुदा को दुनिया की तकरीबन 99% आबादी मानती है। तरीक़ा अलग है, मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू ईश्वर के रूप में किसी एक ताकत को मानते हैं, ईसाई भी गॉड के वजूद पर यकीन रखते हैं। हाँ, चीन में और कुछ दूसरे देशों में ऐसी कुछ आबादी पाई जाती है जिनको एथिस्ट कहा जाता, और उनको लगता है कि दुनिया का पूरा निज़ाम और सिस्टम खुद बखुद चल रहा है, कोई इस निज़ाम को चलाने वाला नहीं, और साइंस के ज़रिए पूरी दुनिया कंट्रोल होती है। साइंस के पास पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन और जानकारी है। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए, चीन जिसके बारे में कहा जाता है उसकी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, वो अमेरिका से आगे बढ़ चुका है, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उसका सारा रिसर्च धरा का धरा रह गया। जो बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन देने वाला सिग्नल था उसने काम नहीं किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रडार चौपट पड़ गया, तमाम आलात चौपट रह गए। और अब अमेरिका मज़े ले रहा है चीन के। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट शाये कर रहा है कि चीन अपने आप के बारे में दावा करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। तो फिर चीन ने क्यों नेपाल को नहीं बताया? और चीन ने जानबूझकर ऐसा किया। और चीन की सरकार कह रही है, चीन के एम्बेसडर जो नेपाल में मौजूद है वो कह रहे हैं ये सब झूठी अफवाह है, चीन को बदनाम किया जा रहा है, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और जानकारी नहीं थी, और इस तरह की जानकारी लोगों को नहीं शेयर करनी चाहिए। चीन की सरकार पूरी तरह नेपाल के साथ है, सहायता पहुंचा रही है, मदद कर रही है, और देखा भी जा रहा है कि दूसरे इलाकों में चीन अपने जहाज़ों के ज़रिए मदद भेज रहा है, बाय रोड चीन मदद भेज रहा है। और जो फ्लड आया है इससे तिब्बत और नेपाल दोनों मुतासिर हुआ है, और तिब्बत पर चीन का कब्ज़ा है, तो चीन और नेपाल का जो सरहदी इलाका है वो सैलाब की जद में है। फ्लड नेपाल में आया, सैलाब वहाँ आया, और लाशें बह बह कर उत्तर प्रदेश में पहुंचने लगी है, बिहार में पहुंचने लगी है। बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट शाये की है, सोशल मीडिया पर भी यह खबर आ गई है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में और महाराजगंज में जो गंडक नदी बहती है वहाँ लाशें मिली है, और 7 लाशें अभी तक कुशीनगर और महाराजगंज में बरामद की गई है। 3 लाशें कुशीनगर में मिली है और 4 लाशें महाराजगंज में मिली है। इनमें 5 महिला की लाशें हैं, 2 पुरुष की लाशें हैं। तो नेपाल में आने वाले फ्लड के बाद जो मौत हुई है, तबाही हुई है, वो लाशें नदी में बहकर यूपी तक पहुंचने लगी है। उधर बिहार के सीमांचल के इलाके को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, और नेपाल से जितना सटा हुआ इंडिया का इलाका है तमाम डिस्ट्रिक्ट को, अजला को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है कि यहाँ भी फ्लड आ सकता है, इसलिए आप लोग होशियार रहिए। तो ये नेपाल में आने वाला फ्लड है, सैलाब है, जिसने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज़्यादा अफराद अभी तक लापता हैं। नेपाल की सरकार ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने 900 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए बचा लिया है जो फंसे हुए थे या इस फ्लड का शिकार हो गए थे। उधर चीन की सरकार ने भी एक डेटा जारी किया है कि 558 से ज़्यादा विजिटर्स लापता हैं, और उनमें ज़्यादातर इंटरनेशनल विजिटर्स है, यानी 250 से ज़्यादा गैर मुल्की सयाह हैं जो चीन की सरहद से लापता है। 5 की मौत वहाँ भी
हो चुकी है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। 178 इंडियन भी लापता है, यानी 178 इंडियन शहरी के बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका। भारत सरकार ने यह भी दावा किया है कि 200 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए बचा लिया गया है, लेकिन 178 के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका कि उनका क्या हुआ। मरने वालों में भारतीयों की भी तादाद ज़्यादा है, अमरीकियों की भी तादाद है और दुनिया के दूसरे देशों के शहरी भी इस फ्लड में मरे हैं। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि तकरीबन दुनिया के 31 देशों के शहरी लापता हैं या उनकी मौत हुई है, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट आते हैं और ये टूरिज़म का एक हब है। खूबसूरती देखने आते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती देखने आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी वीडियो पुरानी शेयर कर रहे हैं कि पिछले साल मैं इस इलाके में गया था और यहाँ जो केबल ब्रिज बना हुआ है उसका मैंने आनंद लिया था, उस पर चढ़कर मैंने फ़ोटो बनाई थी, मैंने रील बनाया था। बहुत सारे लोग वहाँ के पहाड़ों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरा इलाका अब झील में तब्दील हो गया है, तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। जो खुश्की का इलाका था वो नदी में तब्दील हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़तरा 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बारिश भी शुरू हो गई है और दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च इदारे, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक एक रिज़ल्ट और नतीजा पर नहीं पहुंच सके हैं कितना बड़ा फ्लड कैसे आया। किसी का कहना है ग्लेशियर का टुकड़ा टूटने की वजह से, किसी का कहना है बादल के फटने की वजह से, किसी का कहना है कि पहाड़ों का चट्टान गिरा और वो नदी में फंस गया, जिसकी वजह से पानी ने उल्टे रुख पर बहना शुरू कर दिया। नेपाल सरकार ने सबसे पहले कहा कि पहले ज़लज़ला आया और उसके बाद नदी में अचानक तूफ़ान आ गया। तो जब साइंसदानों की अकल हैरान रह जाए, दुनिया दंग रह जाए और अकल काम करना बंद कर दे, उससे आगे और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के कहर का सिलसिला शुरू होता है। खालिक़े कायनात अपनी कुदरत का मुशाहदा दुनिया से करवाता है और यही हो रहा है। और अब दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इदारे मानने को तैयार हैं कि महज सैलाब नहीं, फ्लड नहीं, ये कुछ और है और शायद दुनिया में पहली मर्तबा इस तरह का फ्लड आया है। तबाही आती है, बर्बादी आती है, लेकिन इस नौइयत का कि पहाड़ से पानी आ जाए, कहीं और से पानी आ जाए, अचानक नदियों में तूफ़ान आ जाए और पूरा इलाका झील में, समंदर में तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी दुनिया ने यह सीन नहीं देखा था कि पानी की रफ्तार बिल्कुल तेज़ हो और पूरा का पूरा घर, इलाका बहने लगे। अब देखना ही होगा कि अगले दिनों में नेपाल की सरकार काबू पाती है या नहीं पाती है, क्योंकि जो तबाही हुई है अभी तक नेपाल की सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। आज तीसरा दिन है फ्लड का, सैलाब का, और नेपाल सरकार इस पर काबू नहीं पा सकी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में आपसे गुजारिश है, नेपाल में जो फ्लड आया है, जो तबाही आई है, बहुत बड़ी तबाही है और आप दुआ का एहतमाम कीजिए। नेपाल के हालात अच्छे हो जाए इसकी कोशिश कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ों में दुआ का एहतमाम कीजिए। अगर आप किसी और रिलीजन और धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान दुआ कीजिए। आज जुमा की नमाज के बाद बहुत सारी मस्जिदों में बाज़ाब्ता दुआ का एहतमाम किया गया। लखनऊ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महल्ली जुमा की नमाज के बाद नेपाल के सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। दूसरी मस्जिदों में भी दुआ का एहतमाम किया गया है। राखी सावंत उम्रा करने गई हुई है और खाना काबा में उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ के सामने नेपाल के सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की है। आप इस वीडियो को सुनिए। या मेरे रब, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफ़ान आया, वो रुक जाए। वहाँ के बच्चे, बूढ़े, जानवर सब बचाए जाए। जो कहर आया है अल्लाह, जो कहर आया है नेपाल में, थम जाए, थम जाए मेरे खुदा, थम जाए मेरे खुदा। इन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा, मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे अल्लाह, मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे परवरदिगारा। नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो हमारे इंडियन फंस गए हैं, वहाँ नेपाली लोग फंस गए हैं, उन सब खैर से हो, सही सलामत हो मेरे अल्लाह, सही सलामत हो मेरे अल्लाह, सही सलामत हो मेरे अल्लाह। मेरे रब, मेरे रब, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। नेपाल में सारे बच्चे, बूढ़े, जानवर से बचाए जाए। बारिश, बाढ़ आई है, वो थम जाए अल्लाह, थम जाए।
सारे इंडियन वहाँ गए, उन्हें हर किसी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे अल्लाह, माफ़ी मांगती मेरे खुदा, मेरे परवरदिगारा। और इस तरह अलग अलग जगहों से दुआ की वीडियो सामने आ रही है। और दुआ करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर दुनिया के असबाब से उम्मीदें ख़त्म हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो असल मुसब्बिबुल असबाब है अल्लाह ताला, वही एक आखिरी उम्मीद बचता है और वही अल्लाह तबारक व ताला बचाने वाला है। तो दुआ कीजिए ताकि नेपाल के हालात बेहतर हों। और दोबारा जो खबरें सामने आ रही है कि 5 गुना ज़्यादा तबाही बढ़ सकती है बैरियर झील के टूटने की वजह से, उसकी नौबत ना आ सके। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 दिन पहले मैं आसाम से लौटा हूँ। आसाम में गया था फ्लड और सैलाब से होने वाली तबाही और बर्बादी की रिपोर्टिंग के लिए। आपने भी हमारी रिपोर्ट को देखा होगा। असम में जब फ्लड आया उस वक्त भी मदद की ज़रूरत थी, और अब मज़ीद वहाँ के लोगों को मदद की, इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास अब घर नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं लौट सके हैं, वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, और ऐसे लोगों की लगातार मदद भी की जा रही है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने भी आसाम की लोकल तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबन 25 घर बनाने का ऐलान किया है, और एक घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने अब तक वहाँ नकद पैसा तकसीम किया है, कपड़ा तकसीम किया है, या अनाज तकसीम किया है, और अब उनका घर बनाना ज़रूरी हो गया है। तो 25 घर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनाया जाएगा। वहाँ की लोकल तंजीमों की तरफ से भी मदद दी जा रही है। अगर आप आसाम के सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए उन तक इमदाद पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि कैसे उन तक इमदाद पहुँचाई जाए, क्या तरीक़ा होगा। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, जो लगातार ऐसे मौक़े पर इमदादी काम करती है, और इसके ज़रिए आप अपनी इमदाद वहाँ पहुँचा सकते हैं। आसाम के सैलाब मुतासरीन लोगों की इमदाद का ज़रिया आप बन सकते हैं।